Good evening, everyone. Hope you all are doing good. सर कांट सी यू. एक बार रिफ्रेश कीजिए अपने सिस्टम को. रिफ्रेश योर सिस्टम रवि कुमार. इज ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? Audio video is clear. So audio video is clear. So everything is working fine. So today we'll be discussing about how to write ESE mains. So this class is basically focused for those students who have cleared their pre. तो क्लास फोकस है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने प्री क्लियर कर लिया है. नहीं भी किया है, नेक्स्ट ईयर इट विल प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर यू. So I hope most of the students, it is possible to score 415 mains. Very much possible. Moreover, 450 स्कोर हो रहा है. 450 से ज्यादा ही स्कोर हो रहा है. लास्ट ईयर मेंस की जो कट ऑफ थी 450 से ऊपर ही थी. तो 450 आराम से स्कोर हो जाता है. देयर इज नो इश्यू. चलिए. सो as I have mentioned earlier also, class is for those students, mostly beneficial for those students who have cleared their pre-examination. So we'll be talking about how to write ESE mains here. तो पूरी क्लास में डिस्कशन होगा कि ESE mains कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि there are certain points which we miss out through our journey of the entire preparation. बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम मिस आउट कर देते हैं या कभी सोचते ही नहीं उनके बारे में. बट दे प्ले अ मेजर रोल वाइल डिसाइड योर रैंक ऑल्सो. वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं आपके रैंक डिसाइड करने के अंदर. तो उन छोटी छोटी बातों के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पे. सो विल टॉक अबाउट ऑल दोस माइन्यूट डिटेल्स which are to be kept in mind while writing your mains examination. Not only mains examination, जो discussion होगी वो general होगी and can be used for your straight services examination also. So whatever discussion we'll be doing will be beneficial to be applied in your state services examination also. So both the points will be covered. There will be minute differences. That minute differences I'll be highlighting in between. So the agenda for the today's class is how to write ESE mains examination. So we'll start with the class. Should I disable the chat or is it fine like this only? Should I disable the chat? So I'm keeping the chat open only. So maintain discipline. Once I'm completed with a particular topic, I'll allow you to ask as many problems. So once I complete a particular topic of discussion, I'll allow you to ask as many number of problems you may ask. So we'll start with the today's session. Now. So the entire ESE mains will consist of two papers. So it will consist of two conventional type of papers, that is paper 1 and paper 2. Both will be of engineering discipline. And whosoever is giving the mains examination is familiar with this. But still, since we have to discuss this, I have mentioned this point also. So it will comprise of your two papers, paper 1 and paper 2. Both will be of 300 marks. And the time duration for each paper will be 3 hours. Paper 1 will be having 6 subjects. Paper 2 will also be having 6 subjects. So again, if you are writing your mains examination, you must be familiar at this point of time what are the subjects included in paper 1 and paper 2. अगर आप मेंस का एग्जाम लिख रहे हो, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये पता है कौन कौन से सब्जेक्ट पेपर 1 में इंक्लूडेड है और कौन कौन से सब्जेक्ट पेपर 2 में इंक्लूडेड है. व्हाट आर द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन पेपर 1 and paper 2. So broadly there are 6 subjects in both the paper. They are further divided in sub subjects. तो broadly 6 सब्जेक्ट है दोनों पेपर में and they are further divided in other subjects also. Like in paper 1, the first of the topic is BMC. Paper 2 means subject 2 in paper 1 will consist of the entire structures.
Structures will include your strength of material. Structures will include your theory of structures. Structures will include your steel structures. So structure will include your steel structure. Structure will include your RCC structures. So this entire portion is clubbed into one. It is termed as structures only. And the last of the topic will be CPPM, construction practice and planning management. So these are the six broad topics which will be asked in paper one. On the same lines, there are six broad topics that will be asked in paper two. In paper two, you will find fluid mechanics, further divided into two. Fluid mechanics, open channel flow. Second will be hydraulic machines. Then you will be having water resource engineering. So water resource engineering. Third, you will be having environmental engineering. So enviro. Next, you will be having geotechnical engineering. So geotechnical engineering. Then you will be having survey. So survey. And the last of the topic is transportation. Again, further divided into several topics. So broadly, I have mentioned the different subjects in paper one and paper two. So I'm assuming that this information was known to you. So the entire paper will consist of two parts, paper one, paper two. Both will be of 300 marks. It means total weightage is of 600 marks, which is huge. Duration of the examination will be 3 hours. These are the subjects in paper one and paper two. Now the strategy for your preparation, if I exactly count the number of days from now, 40 days are left. So if I exactly count the number of days from now, 40 days are left for your mains examination to be conducted. Now, in these 40 days, you have to primarily focus on your revision. So I'm again repeating, in these 40 days, you have to primarily focus on revision only. आपको सिर्फ revision करनी है. No new topic is to be studied. कोई नया topic study नहीं करना. Reason being, it will not be beneficial for you. तो जितना पढ़ लिया है, whatever you have studied is more than sufficient. Simply try to gain the efficiency from these topics which you have already studied. आप efficiency gain करने की कोशिश करोगे उन topics में से जो आपने अभी तक पढ़ ली हैं. It means the entire focus will be on revision. तो 100% आपको revision start कर देनी है आज से. तो पहला पॉइंट ये लिखा है, focus on revision only. No new topic is to be studied. कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है आपको आज के बाद. Next, thoroughly go through all the previous year papers. Last 15 years, 10 years, 20 years, whatever time is available with you, जितना भी टाइम आपके पास अवेलेबल है, जितनी भी आपकी स्पीड है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट लास्ट 10 to 20 years ऑफ द पेपर शुड बी थरोली अटेम्प्टेड बाय यू. ये सारे आपने अटेम्प्ट खुद किए होने चाहिए. तो एटलीस्ट 10 years के पेपर्स तो आपको लास्ट के देखने जाने. रीजन बीइंग 10 to 15% ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम द लास्ट ईयर एग्जामिनेशन. तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे 10 to 15% of the problems are directly being asked from the last year examination. तो पिछले 10 से लेके 15 साल के पेपर्स में से आपको 10 से 15% प्रॉब्लम डायरेक्टली मिल जाएंगी. इट मींस 10 to 15% of the problems can be attempted just by going through the last year papers. तो आपकी स्ट्रेटेजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. यू हैव टू एनालाइज द लास्ट ईयर पेपर्स. इससे दो फायदे होंगे. एक, कुछ क्वेश्चंस तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएंगे जिनके पूछे जाने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है. सेकंड, you will come to know what level of the questions is being asked in this mains examination. तो एक तो आपको ये पता चल जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं. One, you will come to know what is the level of the question which is being asked. Second, you will come to know different types of questions, probability of which is comparatively more to be asked. तो आपको लास्ट ईयर के कम से कम 10 से 15 साल के क्वेश्चंस तो देखने ही देखने हैं. थर्ड पॉइंट टू बी रेफर्ड, गिव एम्पल नंबर ऑफ मॉक टेस्ट. जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो दीजिए. So from now, the only focus will be on your test and the only focus will be on your revision. No new topic is to be studied. So the basic crux of the entire discussion being held here कि आपको कोई नया टॉपिक स्टडी नहीं करना आज के बाद. नया टॉपिक स्टडी करोगे जो पुराने वाले हैं उनको रिवीजन का टाइम नहीं दे पाओगे. पुराने वालों में से भी एफिशिएंसी नहीं निकल के आएगी, नए वालों में से भी एफिशिएंसी नहीं निकल के आएगी. So whatever you have studied is more than sufficient. Simply concentrate on your revision. Concentrate कीजिए अपने रिवीजन के ऊपर. नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है ना, हाउ टू डू दिस. ये तो मैंने बोल दिया रिवीजन करो. हाउ टू डू दिस, फॉर दैट मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल. तो आज बैठो, क्लास खत्म होती है, अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ. दैट टाइम टेबल शुड बी सच इट विल एग्जॉस्टिवली कंप्लीट ऑल योर सब्जेक्ट बिफोर द कंडक्शन ऑफ योर मेंस एग्जामिनेशन.
आपका टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जो एग्जॉस्टिवली सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर ले आपके मेंस एग्जाम होने से पहले। एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द मेंस एग्जामिनेशन योर इंटायर सिलेबस मस्ट बी रिवाइज्ड। तो आपका टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि आप सारे के सारे सब्जेक्ट की रिवीजन कर लो कम से कम 5 दिन एग्जाम होने से पहले। एटलीस्ट 10 to 12 hours और 15 hours शुड बी डिवोटेड फ्रॉम द स्टडी फ्रॉम नाउ। अब से कम 10 से लेके 12 घंटे या 15 घंटे जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, ये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने रिवीजन के अंदर। यू हैव टू डिजाइन योर टाइम टेबल इन सच अ वे कि जिस तरीके से जो आपके पिछले वाले सब्जेक्ट हैं वो कंटिन्यूअसली रिवाइज हो रहे हो। कहने का मतलब ये है, इफ यू आर डिसाइडिंग टू रिवाइज फ्रॉम टुमारो, कल आप उठाओगे 2 सब्जेक्ट और यू मे टेक 3 सब्जेक्ट्स, बट वंस यू आर डन विद दीज 2 or 3 सब्जेक्ट्स आप इनको ड्रॉप नहीं करोगे, यू विल नॉट ड्रॉप इट। When again you will pick 2 or 3 subjects, these 2 or 3 subjects will be revised in parallel with that. तो आपको ध्यान रखना है 20% of the time you will invest in the revision of the topics that you have already revised. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 20% of the time for your revision will be invested for those topics which you have already revised. कहने का मतलब है शुरुआत वाले टॉपिक आपके मिस नहीं होने चाहिए, it should not be missed. So your timetable should be such that entire syllabus must be completed in less than 5 days before the conduction of an examination. Moreover, 20% time should be given for revision of those topics which you have already revised. Next point says the major difference or major problem which you face in your mains examination is QCAB. From 2017, the answer booklet which is given to you, is termed as QCAB. The abbreviation है QCAB is question cum answer booklet. What is the meaning of this question cum answer booklet? You must be familiar with this. You must have given several tests. Question cum answer booklet means here specified space will be given to you below the question to write the answer. QCAB का मतलब है कि आपको हर सवाल के नीचे ही जगह दी जाएगी आंसर लिखने के लिए। कहने का मतलब है अब जगह की शॉर्टेज है आपके पास, you have limited availability of the space to write the answer. It means like earlier, means prior to 2017, you can write your answer in as many number of pages in as many number of words, but now you have to restrict the answer. और बहुत ही कैलकुलेटिव मूव है ये यूपीएससी का, ये पता करने के लिए कि आपको सवाल का जवाब टू दी पॉइंट आता है या नहीं आता. इट्स अ वेरी कैलकुलेटिव मूव विच इज बीइंग मेड बाय यूपीएससी टू एनालाइज whether you know the answer to the point or not. कहने का मतलब है स्कूल और कॉलेजेस में जब हम कहानियां बनाते थे वो कहानी नहीं बनानी है आपको. नो स्टोरीज टू बी कुक्ड अप टू राइट द आंसर. टू द पॉइंट यू हैव टू राइट द आंसर इन द लिमिटेड स्पेस which is given to you. If I show you the sample, so if I show you the sample answer sheet that you will get, it will be somewhat like this. अगर मैं आपको सैंपल आंसर शीट दिखाऊं, it will be somewhat like this. On left corner there will be space for question. On left corner there will be space for question. On right corner there will be space for rough work. In between question will be written, so statement of the question will be mentioned, and below it only you have to write the answer. So this is the space which is available to write the answer. तो कहने का मतलब है ऊपर सवाल होगा, नीचे जगह दी हुई होगी आपको आंसर लिखने के लिए. तो आपको ध्यान रखना है, अब पहले जो कन्वेंशनल शीट्स आती थी आंसर लिखने के लिए वैसी नहीं मिलेंगी. अगर आंसर रॉन्ग हो गया वो क्वेश्चन गया, अब आप उसको दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर सकते किसी दूसरी जगह पे. इसीलिए मैंने बोला ये कैलकुलेटिव मूव है यूपीएससी का, ये पता करने के लिए कि आपको टू दी पॉइंट आंसर आता है या नहीं आता, कि आप वहां पे आंसर खुद सोच के या बना के लिख रहे हो वहां पे. तो इसीलिए ये बुकलेट इंट्रोड्यूस की गई है. हेंस दिस बुकलेट इज बीइंग इंट्रोड्यूस हियर. तो ध्यान रखना है आपको ये. तो इसको ओवरकम करने का तरीका क्या है? इसको ओवरकम करने का तरीका है अभी से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो. स्टार्ट गिविंग द मॉक टेस्ट ऑन क्यूकैब ओनली, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि लिमिटेड स्पेस में आंसर कैसे लिखा जाता है, दैट हाउ टू राइट द आंसर इन द लिमिटेड स्पेस. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टुडे सेशन इज टेक प्रॉपर केयर दैट आंसर शीट विल बी क्यूकैब टाइप. इट मींस इट विल बी क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट. कैसे दिखेगी आपको उसका थोड़ा फ्रेमवर्क मैंने दिखा दिया है. दैट फ्रेमवर्क इज बीइंग शोन हियर. नेक्स्ट पॉइंट सेज स्पेस इज रिस्ट्रिक्टेड, सो नो स्टोरीज, आंसर टू द पॉइंट.
टू दी पॉइंट आपको आंसर लिखना है वहां पे। इसके लिए मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है। बेसिक आइडिया दे दिया है, डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज ऑफ द प्रॉब्लम आपको कितने वर्ड्स का आंसर लिखना है। मैंने एक टेबल बना के आपको दे दी है, डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज ऑफ द प्रॉब्लम हाउ मेनी वर्ड्स यू हैव टू राइट इट, और इसकी प्रैक्टिस आपको अभी से करनी है। फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। इफ द प्रॉब्लम इज ऑफ 5 मार्क्स, एट मैक्स यू हैव टू राइट द आंसर इन 100 वर्ड्स। अगर प्रॉब्लम 5 नंबर का है, आपको आधा पेज ही मिलेगा और उसमें आप 100 वर्ड्स लिख पाओगे। इफ द प्रॉब्लम इज ऑफ 10 मार्क्स, यू हैव टू राइट द आंसर इन 150 टू 200 वर्ड्स। अगर 10 मार्क का प्रॉब्लम है, आपको 150 से लेकर 200 वर्ड्स के बीच में अपना आंसर खत्म कर देना है। तो टू द पॉइंट यू हैव टू राइट द आंसर। इफ द प्रॉब्लम इज ऑफ 15 टू 20 मार्क्स, यू हैव टू एक्सप्रेस योर आंसर विद इन 250 टू 300 वर्ड्स। इससे ज्यादा आपको एक्सीड नहीं करना। मोर ओवर एक्सीड कर भी नहीं पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सीड, रीजन बीइंग जगह खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब है, शुरू में कहानी मत बनाना। डोंट कुक अप दी स्टोरीज इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ। टू द पॉइंट मेंशन द आंसर। रीजन बीइंग space is limited. If you run short of the space, you will not get additional sheet to write your answer. आपको कोई additional sheet नहीं मिलेगी उस आंसर को वापस लिखने के लिए। तो सेम प्रॉब्लम इज फेस बाय अमृत। तो अमृत जो प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं वो आपको फेस नहीं करनी है। इसलिए एक मैंने आपको बेसिक गाइडलाइन दे दी है, अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ द प्रॉब्लम हाउ मेनी वर्ड्स शुड बी रिटन इन योर पर्टिकुलर आंसर। सेम फॉर जेई मेंस, सेम है। नेक्स्ट, बहुत सारे डाउट्स आते हैं, सर पेन कौन सी यूज करें। बहुत सारे डाउट्स आते हैं, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आस्क द डाउट। तो ये चीज भी मैंने लिख के दिया आपको। यूज सिंगल कलर पेन ओनली। कहने का मतलब है, वहां पे आपको कोई प्रेजेंटेशन नहीं इंप्रूव करनी। जैसे आप अपने नोट्स बनाते हो कि आपने लाल कलर से हेडिंग लिखी, फिर उसको अंडरलाइन किया, फिर नीले कलर से आपने उसको एक्सप्लेन किया, फिर काले कलर की पेन से वापस अंडरलाइन किया बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, फिर हरे कलर की पेन से डब्बा बनाया। ऐसा कुछ नहीं करना। You have to use only single pen. Reason being space is limited and time is limited. So either use blue pen or black pen. दोनों में से कोई एक पेन यूज कर सकते हो। So either use blue pen or black pen. To make the diagrams, you can use pen also, you can use pencil also. अगर आपको डायग्राम बनाना है, आप पेन भी यूज कर सकते हो, पेंसिल भी यूज कर सकते हो। प्रेफर यूजिंग पेंसिल, कि अगर कोई गलती हो जाए आप उसको रब कर पाओ। ड्रॉ दी डायग्राम्स करेक्टली विद फ्री हैंड। अगेन मैं फोकस कर रहा हूं फ्री हैंड पे। अगर कोई डायग्राम ऐसा है जिसमें स्केल की जरूरत पड़ रही है तो बना लेना, नहीं तो टाइम वेस्ट मत करना डायग्राम के अंदर। डोंट वेस्ट योर टाइम इन डायग्राम। डायग्राम शुड बी सच दैट यू आर एबल टू कन्वे वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। डायग्राम आपका बस ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी बात को, आपके मैसेज को कन्वे कर दे। जरूरी नहीं है आपका डायग्राम स्केल पे हो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट योर डायग्राम शुड बी ऑन एग्जैक्ट स्केल। तो एज फार एज पॉसिबल मेक द डायग्राम विद फ्री हैंड। अगर बिल्कुल ही नहीं बना पा रहे हो तो आप अपनी स्केल या रूलर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो मेजर डाउट निकल के आता है, अवॉइड लास्ट स्टेप मिस्टेक्स। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, पूछते हैं स्टूडेंट्स, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आस्क दिस डाउट कि सर स्टेप मार्किंग होती है क्या? क्या स्टेप मार्किंग होती है क्या? अगर किसी से भी आप ये पूछते हो स्टेप मार्किंग होती है और वो आपको ये बताता है कि हाँ स्टेप मार्किंग होती है, इसका मतलब है कि एम्बिगुअस स्टेटमेंट है ये। रीजन बीइंग आंसर शीट इज नॉट बीइंग शोन। आंसर शीट शो नहीं की जाती। इसका मतलब ये है कि आपको पता ही नहीं चलेगा स्टेप मार्किंग होती है या नहीं होती। फिर भी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस इफ वी एनालाइज लेट अस सपोज योर प्रॉब्लम इज ऑफ 20 मार्क्स। आपका प्रॉब्लम 20 मार्क्स का, न्यूमेरिकल इज ऑफ 20 मार्क्स। 50% मार्क्स विल बी गिवन टू यू ओनली इफ यू गेट द एग्जैक्ट आंसर। इसमें जो 50% मार्क्स हैं वो आपको तभी मिलेंगे जब आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। So let us suppose there are 10 steps. All the 9 steps you have done correctly. You have done the mistake in the 10th step. आपके 50% मार्क्स वही चले जाएंगे। 50% of the marks will be taken away from that particular problem. So don't rely on step marking. Rely मत करो step marking के ऊपर। पर फिर भी on the basis of the experience it can be referred that 50% of the marks will be deducted if you don't get the correct answer and rest of your calculation is correct. But for my side आपको स्टेप मार्किंग के ऊपर रिलाय नहीं करना है। आपको अपना सवाल पूरा ही सही करना है। यू हैव टू अटेम्प्ट द प्रॉब्लम करेक्टली अप टू द लास्ट स्टेप। नेक्स्ट पॉइंट विच इज टू बी टेकन प्रॉपर केयर ऑफ, सेलेक्ट योर प्रॉब्लम वेरी वाइसली। अपनी प्रॉब्लम जो आपको सॉल्व करनी है बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करनी है। और इस बात को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी। फॉर दैट हाउ मेनी प्रॉब्लम्स विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन मस्ट बी नोन टू यू। सो वंस यू स्टार्ट राइटिंग द आंसर, first 5 to 10 minutes must be devoted dedicatedly
to simply analyze what problems are to be answered by you. अब इस बात को समझने के लिए you should know there will be total 2 sections in your paper. So there will be total 2 sections in your paper. It means you will be getting 8 problems. आपको 2 section मिलेंगे. So there will be 2 sections. Problem will be numerical also. Problem will be theoretical also. There will be 2 sections having total of 8 problems. Each section will be having 4 problems. हर section में आपको 4 problem मिलेंगी. Weightage of each problem will be same, 60 marks. हर problem का weightage same होगा 60 marks का. So if I show you the section, let us suppose this is section 1. Section 1 will be having the problems from 1 to 4. Section 2 will be having the problems from 5 to 8. So there will be 2 sections. Each section will be having 4 problems. Now read your instructions very carefully. Now instruction says what? Pehla instruction. Problem number 1 and problem number 5 will be compulsory. From section 1, first problem, section 2, first problem. These are compulsory problems. तो आपको ये problem तो attempt करने ही करने हैं. You have to attempt these problems. So total 5 number of problems are to be attempted. Each problem will be of 60 marks. So total will become 300 marks. Out of these 5 problems, 1 problem from each section, which is the first problem, is compulsory. It means now you are left with the 3 problems. अब फिर से यहाँ पे ध्यान रखना, ट्रिक है ये. क्या ट्रिक है ये? एक स्टेटमेंट आपको लिखी हुई मिलेगी वहां पे. क्या स्टेटमेंट आपको लिखी हुई मिलेगी? अटेम्प्ट एटलीस्ट 1 मोर प्रॉब्लम फॉर ईच सेक्शन. तो ध्यान से मैं रिपीट कर रहा हूं, अटेम्प्ट एटलीस्ट 1 मोर प्रॉब्लम फ्रॉम ईच सेक्शन. इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है, आप बोलोगे सर उन्होंने हमें ये बोला दैट अटेम्प्ट प्रॉब्लम नंबर 1 फ्रॉम सेक्शन 1 and problem number 5 from section 2. These are compulsory problems. I am left with 3 more problems. मैंने तीनों प्रॉब्लम सेक्शन नंबर 1 से कर ली. अगर मैंने तीनों प्रॉब्लम सेक्शन नंबर 1 से कर ली, आपकी एक प्रॉब्लम काउंट नहीं होगी. Your one problem will not be counted because the instruction says that attempt at least 1 more problem from each section. आपको दोनों सेक्शन में से कम एक और प्रॉब्लम अटेम्प्ट करनी है. If you have done like this, क्या किया आपने? सेक्शन 1 की चारों प्रॉब्लम कर ली और सेक्शन 2 की फर्स्ट प्रॉब्लम करी. आपकी सेक्शन 1 की बस पहली 3 प्रॉब्लम्स ही काउंट होंगी. Only first 3 problems of your section 1 will be counted in sequential order. So they will count problem number 1, problem number 2, problem number 3. They will not count problem number 4. वो आपकी प्रॉब्लम नंबर 4 काउंट नहीं करेंगे. तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको दोनों सेक्शन में से कम एक प्रॉब्लम और अटेम्प्ट करनी है. यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 1 मोर प्रॉब्लम फ्रॉम आइदर ऑफ द सेक्शन. इसका मतलब बॉटम लाइन क्या निकली? आपको दोनों में से किसी एक सेक्शन में से 2 प्रॉब्लम करनी पड़ेंगी और किसी दूसरे सेक्शन में से 3 प्रॉब्लम करनी पड़ेंगी. तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताऊं, आपको दोनों में से किसी एक सेक्शन में से 2 प्रॉब्लम करनी पड़ेंगी, किसी दूसरे सेक्शन में से 3 प्रॉब्लम करनी पड़ेगी. If you attempt 2 problems from section 1, you have to attempt 3 problems from section 2. If you attempt 3 problems from section 1, you have to attempt 2 problems from section 2. क्या ध्यान रखते हुए कि पहली प्रॉब्लम दोनों सेक्शन की कंपलसरी है. फर्स्ट प्रॉब्लम और बोथ दी सेक्शन इज कंपलसरी. सो टेक प्रॉपर केयर. इसका ध्यान रखना साहब. तो मोस्टली ब्लंडर होता है यहाँ पे, फिर मार्क्स पूरे कर जाएंगे सारे. तो 60 मार्क्स विल बी वेस्टेड आउट. एक और प्रॉब्लम आती है यहाँ पे. कुछ लोग ज्यादा समझदार होते हैं, वो बोलते हैं सर हम 6 प्रॉब्लम करा है. सर मैंने 4 प्रॉब्लम सेक्शन नंबर 1 की कर ली और 2 प्रॉब्लम सेक्शन नंबर 2 की कर ली. आई हैव अटेम्प्टेड 6 प्रॉब्लम्स. आपने 6 प्रॉब्लम अटेम्प्ट करी हैं. दे विल ओनली काउंट दिस 5 प्रॉब्लम. वो सिर्फ 5 प्रॉब्लम काउंट करेंगे. और किस रूल को फॉलो करते हुए? They will consider only 5 problems, adopting which rule? The same rule which I have discussed. They will consider only at max 3 problem from each section. वो एक सेक्शन में से मैक्सिमम 3 प्रॉब्लम कंसीडर करेंगे सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर. तो अगर आपने ऐसा किया, हो सकता है आप अपने मार्क्स कम करवा के आ जाओ. कैसे मार्क्स कम करवा के आ जाओ? आपने प्रॉब्लम नंबर 4 अटेम्प्ट करी. यहाँ पे यू अटेम्प्टेड प्रॉब्लम नंबर 4. आपको इस प्रॉब्लम में 50 मार्क्स मिले आउट ऑफ 60. आपने प्रॉब्लम नंबर 6 अटेम्प्ट करी, इसके अंदर
आपने प्रॉब्लम नंबर 6 अटेम्प्ट करी, इसके अंदर आपको इसमें मिले 10 मार्क्स आउट ऑफ 60, तो आप क्या बोलोगे, सर वो तो फर्स्ट 5 प्रॉब्लम से ले लेगा, तो फर्स्ट 5 प्रॉब्लम से लेगा, ऐसा नहीं होगा, वो आपकी ये वाली प्रॉब्लम ड्रॉप कर देगा और ये वाली प्रॉब्लम कंसीडर करेगा। तो टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। इसको मैंने सिंप्लीफाई करके बता दिया है। फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ बोथ द सेक्शन इज कंपल्सरी, you have to attempt at least one more problem from both the section. It means bottom line is you have to attempt either 2 or 3 problems from each section. If 2 problems from section number 1, it means 3 problems from section number 2. If 3 problems from section number 1, it means 2 problems from section number 2, such that first problem of both the section is attempted. It is a compulsory problem. Second point, even if you attempt the problem partially, it will be counted attempted. फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ यू अटेम्प्ट दी प्रॉब्लम पार्शली, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि सर प्रॉब्लम नंबर थ्री के 4 पार्ट्स थे, प्रॉब्लम नंबर 4 के भी 4 पार्ट्स थे, तो मैंने 2 पार्ट प्रॉब्लम नंबर 3 के कर लिए और 2 पार्ट प्रॉब्लम नंबर 4 के कर लिए, क्या ये एक प्रॉब्लम काउंट हो जाएगी? क्या ये एक प्रॉब्लम काउंट नहीं होगी, तो ये दोनों जोड़ के एक प्रॉब्लम काउंट नहीं होगी। सो इवन इफ यू अटेम्प्ट द प्रॉब्लम पार्शियली, इट विल बी काउंटेड अटेम्प्टेड, वो इसको अटेम्प्टेड मानेगा और अगली प्रॉब्लम पे नहीं जाएगा। अगर आप कोई प्रॉब्लम को अटेम्प्ट नहीं कर रहे, अगर आप कोई प्रॉब्लम को अटेम्प्ट नहीं कर रहे, जैसे इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग प्रॉब्लम नंबर 3, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस प्रॉब्लम को स्ट्राइक ऑफ करना पड़ेगा। ये सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं वहां पे, इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग प्रॉब्लम नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन तो लिखा होगा वहां पे, क्वेश्चन विल बी रिटन देयर और नीचे जगह दे रखी होगी। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस प्रॉब्लम को स्ट्राइक ऑफ करना पड़ेगा। अगर आपने उसको स्ट्राइक ऑफ नहीं किया, वो क्या मान लेगा, अगर आपने उस प्रॉब्लम को स्ट्राइक ऑफ नहीं किया, वो क्या मान लेगा कि आपने ये प्रॉब्लम अटेम्प्ट करी और आपको जवाब नहीं आता था, कि आपने ये प्रॉब्लम अटेम्प्ट करी और आपको जवाब नहीं आता था, तो आपने खाली छोड़ दी वो जगह। तो अगर आपने जगह खाली छोड़ दी प्रॉब्लम नंबर 3 की और प्रॉब्लम नंबर 4 कर दिया, वो प्रॉब्लम नंबर 4 को काउंट नहीं करेगा। तो इफ यू आर स्किपिंग एनी प्रॉब्लम, यू हैव टू स्ट्राइक दैट प्रॉब्लम ऑफ। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो मेजर इंपैक्ट क्रिएट करती हैं आपके मार्क्स के ऊपर। सो टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस, इसका खास ध्यान रखना। सो यू हैव टू अटेम्प्ट 5 प्रॉब्लम्स आउट ऑफ द 8 प्रॉब्लम्स, पर इसमें जो ट्रिक है वो आपको बता दी है। द ट्रिक विच इज बीइंग इन्वॉल्वड, दैट शुड बी नोन टू यू, उसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। Now, out of 5 problems, which problem will be selected by you? इन 5 प्रॉब्लम में से आप कौन सी प्रॉब्लम सेलेक्ट करोगे? पहली, जिसमें आप 100% श्योर हो आंसर निकल के आएगा। Out of these 5 problems, you will select that problem first in which you have 100% surety to attempt that problem completely and correctly. Let us suppose ऐसी 3 प्रॉब्लम्स हैं। Out of 5 problems, you know 3 problems in which you are 100% sure. इन तीनों में से सबसे पहले आप वो करोगे जिसमें टाइम सबसे कम लगता है। इन तीनों में से सबसे पहले प्रॉब्लम वो करेंगे जिसमें टाइम सबसे कम लगता है। So first, give 5 to 10 minutes to identify the problems which are to be attempted. You will identify the sequence in which the problem is to be attempted. सबसे पहले वो प्रॉब्लम अटेम्प्ट करेंगे जो 100% आती है और जिसमें टाइम सबसे कम लगेगा आपके हिसाब से, in which the time required will be least according to your analysis. तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एग्जाम लिखने से पहले ध्यान रखनी है, विच हैव टू बी टेकन प्रॉपर केयर ऑफ व्हाइल राइटिंग योर एग्जामिनेशन। इसमें से कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो, एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड अप टिल नाउ, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रिपीटेड अप टिल नाउ फॉर एनीवन? चलिए, नाउ हाउ मेनी पेजेस विल बी गिवन टू यू, हाउ मेनी पेजेस विल बी गिवन टू यू फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, दैट इज ऑल्सो बीइंग मेंशन्ड हियर, वो भी मैंने मेंशन कर दिया आपको। So left side is for question number, right side is for rough work. In between the space will be given to you to attempt your problem. According to the weightage of the problem, the number of pages which will be given to you is also being given. If the problem is of 10 marks, you will get 1 page. If the problem is of 12 marks, you will get 1.5 page. If the problem is of 15 marks, you will get 2 pages. If the problem is of 20 marks, you will get 3 pages for that. And if the problem is of 25 marks, you will get 3 to 4 pages. But if we leave 3 and attempt 4, so what will be considered? If you leave 3, strike it off. If you leave 3, strike it off. Then fourth problem will be counted. अगर आपने 3 छोड़ दिया और फोर्थ प्रॉब्लम करी, छोड़ने का मतलब है आपको उसको स्ट्राइक करना पड़ेगा। अगर आपने स्ट्राइक नहीं किया,
वो थर्ड प्रॉब्लम काउंटेड मान लेगा आपकी। तो ये इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं साफ साफ उसके ऊपर, मैं आपको एक शीट भी दिखा दूंगा, आई गिव यू दी स्टेटमेंट ऑल्सो कि क्या स्टेटमेंट लिखी होती है वहां पे। सो टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, अदरवाइज सवाल आते हुए भी मार्क्स नहीं मिलेंगे वहां पे। नेक्स्ट पॉइंट सेज रीड दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट लिखी होती है इंस्ट्रक्शन के अंदर। Attempt of questions shall be counted in sequential order. This statement is clearly mentioned there. What is the meaning of this statement? आपका जो अटेम्प्ट है क्वेश्चंस का वो काउंटेड होगा सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर। तो टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। अनलेस स्ट्रक ऑफ, अनलेस आपने उसको स्ट्रक नहीं किया, ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में काउंट कर जाएगा उसे। तो आपने थर्ड प्रॉब्लम नहीं करी पर आपने उसको स्ट्रक ऑफ नहीं किया, ही विल काउंट योर थर्ड प्रॉब्लम अटेम्प्टेड, वो आपकी थर्ड प्रॉब्लम अटेम्प्ट मान लेगा। दूसरा स्ट्रक ऑफ, अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन शैल बी काउंटेड इवन अटेम्प्टेड पार्टली। अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चंस शैल बी काउंटेड इवन इफ अटेम्प्टेड पार्टली। आपने थर्ड प्रॉब्लम का लास्ट पार्ट किया तब भी वो क्या मान लेगा, आपने थर्ड प्रॉब्लम कर ली है। तो पार्टली प्रॉब्लम अटेम्प्टेड विल बी काउंटेड एज अटेम्प्टेड प्रॉब्लम। इफ द प्रॉब्लम इज नॉट स्ट्रक ऑफ इट विल बी काउंटेड इफ कम्स इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, अगर वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में आती है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना वहां पे। तो एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट लिखी हुई मिलेगी आपको पेपर में, यू विल फाइंड द एग्जैक्ट स्टेटमेंट बीइंग मेंशन्ड देयर। Point repeat once, sir. Which point, Rahul? Which point is to be repeated? ये वाला पॉइंट जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, if you attempt and then struck off, if you have struck off then why it will be counted? अरे आपने लिख दिया प्रॉब्लम का आंसर, फिर आपने उसको काट दिया इसका मतलब तो आपने छोड़ दिया ना, उसे स्ट्रक ऑफ कर दिया ना। तो पहली बात तो ये बताओ, आपने लिखा फिर स्ट्रक क्यों किया? Why you have wasted the time? आपने ये प्रॉब्लम लिखने में टाइम क्यों वेस्ट किया? अभी मैंने क्या बोला, शुरू के 5 से 10 मिनट आप कहां इन्वेस्ट करोगे? शुरू के 5 से 10 मिनट आप इन्वेस्ट करोगे ये पता करने में कौन सी प्रॉब्लम करनी है, ताकि ये ब्लंडर नहीं हो वहां पे। एक प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। एंड इफ यू इन्वेस्ट 15 to 20 मिनट्स इन अ प्रॉब्लम विच यू आर सकिंग ऑफ, इसका मतलब ये है कि आप 15 से 20 मिनट वेस्ट कर रहे हो वहां पे। तो इसलिए शुरू के 5 मिनट इन्वेस्ट करो ये पता करने में कौन सी प्रॉब्लम करनी है, ताकि ये चीज नहीं हो वहां पे। थर्ड अटेम्प्ट नहीं किया तो क्वेश्चन भी कट करना है, क्वेश्चन कट करना है। अगर आपने अटेम्प्ट किया और कट किया, आपने खाली छोड़ दिया, तब भी आपको कट करना है इसको। तो ये देखो मेंशन्ड है यहाँ पे, अनलेस स्ट्रक ऑफ, जब तक आप उसको स्ट्रक ऑफ नहीं करोगे इट विल बी काउंटेड इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। बहुत छोटी सी बात है पर अगर ध्यान नहीं रखा या मतलब नहीं पता हुआ, एक पूरा सवाल गायब हो जाएगा आपका वहां पे, यानी 60 मार्क्स विल बी गॉन ऑफ। Even if you do not put a single mark with a pen on the space provided for answer, still do we need to strike off? Yes, you need to strike off. Even if you don't write, even if you don't place this point also, you have to strike off. What's the point? Chaliye. Now the basic point of discussion. Your paper will consist of two types of question. Your paper will consist of two types of question, numerical and theoretical. Your paper will consist of two types of question, numerical and theoretical. Now the point is, which problem is to be decided? So according to me and in general, prefer numericals over theoretical problems. Numericals को prefer करना theory के ऊपर, reason being, if you attempt your numerical correctly, probability is here you will get full marks. But even if you attempt the theoretical problem correctly, probability is you will never get a full mark. आपको कभी full marks नहीं देगा वो. So always prefer numerical over the theoretical portion. First question in both sections is compulsory. Yes. First problem in both the sections is compulsory. In both the sections, first problem will be compulsory. It means problem number 1 and problem number 5 is compulsory. While writing main exam, many times we are unable to get the real meaning of explain, illustrate, examine your opinion, etc. What should we write the same? I'll come to this point. Gunjan Kripal, I'll come to this point. What is the meaning of this? So your paper will consist of two type of questions, numerical and theoretical. Prefer numerical over theoretical until or unless आपको numerical आता ही नहीं है। तो ये मत बोलना सर आपने तो बोला था numerical prefer करो, मेरे को numerical आते ही नहीं है तो मैंने सवाल ही नहीं किया कोई सा भी। तो ऐसा नहीं करना। तो अगर numerical और theoretical में से numerical आता है तो पहले numerical करेंगे, उसके बाद theoretical करेंगे। Then we'll go for the theoretical problem. Now how to attempt a numerical problem? Again, there are two candidates X, candidate Y.
both have solved numerical problem, same numerical problem, both have got the exact result, दोनों ने exact result निकाल के भी दिया, प्रॉब्लम वाज ऑफ 10 मार्क्स, एक को 10 में से 10 मिल गए, एक को मिले 8 आउट ऑफ 10। तो दो कैंडिडेट हैं, दोनों ने सेम न्यूमेरिकल किया, सेम मार्क्स का, आंसर भी सेम आया, मार्क्स अलग अलग मिलेंगे उनको। क्यों? इसको करने में भी एक टेक्निक होती है। देयर इज ऑल्सो अ टेक्निक टू अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन योर एग्जामिनेशन। अब किन किन चीजों का ध्यान रखना है न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करते हुए? फर्स्ट, राइट ऑल द गिवन डाटा। जो भी गिवन डाटा है उसको आप मेंशन करोगे एक ही लाइन में, अलग अलग लाइन में नहीं। डोंट राइट इन वर्टिकल फॉर्म, राइट इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म, जगह नहीं है हमारे पास, बट यू हैव टू मेंशन गिवन डाटा। इससे एग्जामिनर को यह पता चलता है कि आपको सवाल समझ में आया है। दिस गिवन डाटा गिव्स एन इंप्रेशन टू द एग्जामिनर दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो पहली चीज, आपको डाटा जो दिया हुआ है वो मेंशन करना है। नेक्स्ट, यू हैव टू डिफाइन द सिंबल यूज्ड। आपको जो सिंबल यूज कर रहे हैं वो डिफाइन करना है, अनलेस और अनटिल वो स्टैंडर्ड सिंबल हो। तो अगर आप कोई सिंबल यूज कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम में, आप उसको डिफाइन करोगे, यू विल डिफाइन दैट। नेक्स्ट, राइट ऑल द assumptions यूज्ड। अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जितनी भी assumptions हैं आप शुरू में मेंशन करोगे। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सिविल, कोई सा भी टॉपिक उठा लो सिविल का, रेफर एनी टॉपिक। लेट सपोज यू आर अटेम्प्टिंग अ प्रॉब्लम ऑन डार्सीज लॉ, यू विल राइट द assumption ऑफ डार्सीज लॉ दैट सॉइल इज सैचुरेटेड, फ्लो इज लेमिनार। तो आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी वहां पे, यू हैव टू मेंशन दैट। नेक्स्ट, डू नॉट बेस ऑन यूनिट्स। यूनिट्स में गलती नहीं करनी है आपको। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, टेक प्रॉपर केयर ऑफ द यूनिट्स। नेक्स्ट, यू हैव टू राइट द फॉर्मूला विच यू आर यूजिंग। आपको फॉर्मूला मेंशन करना पड़ेगा जो आप यूज कर रहे हो। तो आप बोलोगे एज पर डार्सीज लॉ वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, यू हैव टू मेंशन इट। तो हम सारी गिवन डाटा को लिखेंगे, हम अपने सिंबल्स को डिफाइन करेंगे, आई डिफाइन दी सिंबल्स, आई राइट दी assumptions यूज, आई राइट दी एक्सप्रेशन मींस फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ विच प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। तो कैंडिडेट एक्स ने ये सारी चीजें करी थी, ऑल दीज पॉइंट्स वर टेकन प्रॉपर केयर बाय कैंडिडेट एक्स। कैंडिडेट वाई ने क्या किया? गिवन डाटा नहीं लिखा, assumptions नहीं लिखी, अपना एक्सप्रेशन लगाया v इक्वल्स टू के आई और आंसर निकाल के दे आया। आंसर तो आ गया दोनों का, पर आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। तो उसके भी मार्क्स मिलते हैं। रीजन बीइंग, इफ यू आर अटेम्प्टिंग दी सेम प्रॉब्लम, यू आर अटेम्प्टिंग दी सेम प्रॉब्लम, कैंडिडेट एक्स ने इतना एफर्ट लगाया उसके अंदर और आपने ये सारी चीजें स्किप कर दी हैं। सो व्हेनेवर यू विल अटेम्प्ट अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, टेक प्रॉपर केयर, ये सारे पॉइंट्स वहां पे आप इंश्योर करो। लास्ट, अपना आंसर निकालने के बाद यू हैव टू एक्सप्लेन योर आंसर ऑल्सो। लास्ट, अपना आंसर निकालने के बाद यू हैव टू एक्सप्लेन योर आंसर ऑल्सो। जैसे एग्जाम्पल निकालते हैं, आपने कैलकुलेट किया चेंज इन हाइट, चेंज इन हाइट कम्स आउट टू बी -2 mm। यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस -2। आपको लास्ट में एक्सप्लेन करना पड़ेगा द माइनस साइन इंडिकेट्स दैट हाइट इज रिड्यूस्ड बाय 2 mm। तो आप लास्ट में एक्सप्लेन करोगे अपने आंसर को कि जो हाइट है, किसी भी चीज की हाइट है, वो 2 mm क्या हो गई है? रिड्यूस हो गई है। तो इन द लास्ट यू हैव टू एक्सप्लेन योर आंसर ऑल्सो। दिस विल मेक योर आंसर कंप्लीट। ये आपको अपने सवाल का आंसर कंप्लीट करके देगा। हाँ, इतना टाइम मिलता है सारी चीजें करने के लिए, और अगर आपको ये टाइम सफिशिएंट नहीं लग रहा, इसका मतलब आपकी अपनी इतनी प्रैक्टिस ही नहीं है। तो अगर आप ये सारी चीजें मिस कर रहे हो, अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। सो वॉट एवर टेस्ट यू विल गिव फ्रॉम नाउ, मेक श्योर कि आप इन सारी चीजों को इंश्योर कर रहे हो, यू आर इंश्योरिंग ऑल दिस। दूसरी चीज, अगर आप इन चीजों को इंश्योर नहीं कर रहे हो सकता है एक सवाल और कर लो। अगर आप इन सारी चीजों को यूज नहीं कर रहे हो सकता है एक सवाल आप और कर लो। इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग प्रॉब्लम ऑफ 240 मार्क्स, यू अटेम्प्टेड द प्रॉब्लम ऑफ 280 मार्क्स। पर आपको 240 में से 210 मिल जाएंगे, 280 में से आपको 180 मिलेंगे, ये ध्यान रखना। तो आप ये बोल रहे हो कि टाइम मिलेगा इतना, नो इशू। अगर इन चीजों को करने में टाइम लग भी जाता है, आपको इसका रिटर्न मिलेगा वहां पे, यू विल गेट द रिटर्न फॉर दिस। तो इस चीज में मत परेशान होना कि इन चीजों के लिए टाइम होता है या नहीं होता। पर क्वेश्चन कितना टाइम होता है मैंने बताया पीछे आपको, आई गिवन द एग्जांपल, मैंने पूरी डाटा दिए पीछे आपको कि पर क्वेश्चन कितना टाइम मिलेगा आपको। ये वीडियो हमेशा यही रहेगी, यू कैन अगेन सी द वीडियो ऑल्सो। आप सारी वीडियो वापस दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं थ्योरी प्रॉब्लम्स की। तो किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि थ्योरी प्रॉब्लम में दिक्कत आती है हमें। इन थ्योरी प्रॉब्लम, फर्स्ट एनालाइज व्हाट इज आस्क्ड। थ्योरी प्रॉब्लम में आपको एनालाइज करना पड़ेगा पूछा क्या है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, फर्स्ट डिफाइन
लिक्विफेक्शन, डिफाइन लिक्विफेक्शन, ये पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम, इन व्हाट कंडीशन, इन व्हाट कंडीशन लिक्विफेक्शन टेक्स प्लेस, इन व्हाट कंडीशन लिक्विफेक्शन टेक्स प्लेस। अब आप बोलोगे कि सर ये दोनों प्रॉब्लम तो सेम है, लिक्विफेक्शन ही तो पूछी है। पहला प्रॉब्लम डिफाइन लिक्विफेक्शन, दूसरा प्रॉब्लम इन व्हाट कंडीशन लिक्विफेक्शन टेक्स प्लेस। दो अलग अलग सवाल ही है। वर्ड भले ही कॉमन है दोनों के अंदर, इवन इफ द वर्ड इज कॉमन, लिक्विफेक्शन इन टू प्रॉब्लम्स, बट द मेथड टू राइट द आंसर इन बोथ द प्रॉब्लम्स विल बी डिफरेंट। तो जैसे प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट होगी एग्जैक्टली वैसा ही आप लिखोगे, आप उसके अलावा और कुछ नहीं लिखोगे। So your words should be limited in such a way it serves the purpose of the problem. Moreover, it should not exceed the word limit. वो word limit को exceed नहीं करना चाहिए। तो पहले प्रॉब्लम में आपको लिक्विफेक्शन को बस डिफाइन करना है कि लिक्विफेक्शन क्या होती है। दूसरे प्रॉब्लम में आपको लिक्विफेक्शन डिफाइन नहीं करना है। दूसरे प्रॉब्लम में आपको टू दी पॉइंट बताना है कि लिक्विफेक्शन क्यों होती है, व्हाई लिक्विफेक्शन टेक्स प्लेस। तो अभी शुरू में किसी ने एक डाउट पूछा था कि डिफाइन, इलेबोरेट, डिस्कस, इन सारी बातों का अलग अलग मतलब होता है। तो डिफाइन आपको बस उसकी डेफिनेशन लिख के आनी है और कुछ नहीं करना। इलेबोरेट, इसका मतलब आपको डिफाइन करने के बाद उसे एक्सप्लेन भी करना है। आफ्टर डिफाइनिंग यू हैव टू एक्सप्लेन इट ऑल्सो। नेक्स्ट एक और वर्ड लिखा था, वन मोर वर्ड वॉज बीइंग मेंशन्ड, ये रहा, एग्जामिन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जामिन? एग्जामिन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जामिन? एग्जामिन का मतलब है ही विल गिव यू अ सिचुएशन और आपको पता लगाना पड़ेगा कि लिक्विफेक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। सो अ डेटा विल बी गिवन टू यू और अ सिचुएशन विल बी गिवन टू यू। यू हैव टू एग्जामिन वेदर लिक्विफेक्शन विल टेक प्लेस और नॉट टेक प्लेस। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, आई एम गिविंग माय एग्जांपल। लेट अस सपोज वी हैव ग्रेवल, लेट अस सपोज वी हैव ग्रेवल, gravel is bounded by, gravel is bounded by clay. Examine liquefaction will take place or not. We have a gravelly soil, it is bounded by clay. Examine liquefaction will take place or not. Yes, liquefaction will take place. तो आपको एग्जामिन करके देना है, आपको डिफाइन नहीं करना लिक्विफेक्शन। यू डोंट हैव टू डिफाइन लिक्विफेक्शन हियर। क्लियर है चीज? लास्ट में कई बार ऐसा आता है जस्टिफाई योर आंसर। इन लास्ट यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिफिकेशन? तो एक्सप्लेन का मतलब पता है, डिफाइन का मतलब पता है, एग्जामिन का मतलब पता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिफिकेशन? जस्टिफिकेशन मींस यू हैव टू प्रूव इट। आपको रीजन देना पड़ेगा उस चीज का। जैसे जस्टिफाई योर आंसर, तो आपने बोला एग्जामिन लिक्विफेक्शन विल टेक प्लेस, यू आर सेइंग यस लिक्विफेक्शन विल टेक प्लेस, जस्टिफाई इट। इसको जस्टिफाई करो, लिक्विफेक्शन होगी, तो आपको जस्टिफाई यानी प्रूव करके देना पड़ेगा। हम क्या बोलेंगे? सिंस ग्रेवल इज अ परमिएबल सॉइल बट इट इज बाउंडेड बाय इम्परमिएबल सॉइल, सो पोर वाटर प्रेशर विल, so pore water pressure will increase, effective stress will decrease in gravel, hence shear stress will reduce, hence liquefaction will take place. इसलिए लिक्विफेक्शन हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जस्टिफाई करना। इट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिफिकेशन। तो हर बात का मतलब अलग होगा। एवरी वर्ड विल हैव इट्स ओन मीनिंग। हर बात का मतलब अलग होगा, इसलिए आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा। फर्स्ट एनालाइज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। कहने का मतलब है लिक्विफेक्शन की डेफिनेशन रटी हुई है, लिक्विफेक्शन के हर सवाल में वही डेफिनेशन मत लिख के आ जाना। इन एवरी प्रॉब्लम ऑफ लिक्विफेक्शन डोंट राइट द सेम थिंग, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती हैं, बिकॉज दीज प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन एंड ईच अदर। इलेबोरेट मींस एक्सप्लेन, elaborate means explain. Main stress series, we are having main stress series, main stress series will take place, don't worry. Next, never repeat sentences. कभी भी आपको अपने सेंटेंस रिपीट नहीं करने। कहने का मतलब है एक्टिव पैसिव मत खेलना वहां पे। डोंट प्ले विद एक्टिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस। तो सेंटेंस रिपीट नहीं होने चाहिए वहां पे। तो क्विक सैंड कंडीशन टेक्स प्लेस इन, quick sand condition takes place in fine sand and coarse silt. In coarse silt and fine sand, quick sand condition takes place. तो ये चीज बार बार मत लिखना। तो डोंट कीप ऑन रिपीटिंग योर सेंटेंस। तो आपको अपना सवाल पॉइंट के फॉर्म में लिखना है। यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। दूसरा, पैराग्राफ नहीं लिखने। So avoid writing in paragraph. So to the point, in bullet form, you have to express your answer, and you don't have to repeat your sentences. जो भी डायग्राम है वो आपको मेंशन करने हैं। प्रॉपरली ड्रॉ योर डायग्राम्स, फिगर्स एंड कर्व्स वेयर एवर नीडेड। जहां पर भी रिक्वायरमेंट हो कर्व बना के आना, डायग्राम बना के आना या फिगर बना के आना।
Clear चीज? Sir, this analysis of question can be achieved only if you have practiced enough number of question. Absolutely correct, Yashvardhan. It can only because I can only tell you this point, but you have to execute this point. मैं आपको ये point बता सकता हूं, आपको ये point execute करने हैं, और सारी बातें पहली बार execute नहीं होंगी। ये सारी बातें अगर आप पेपर देने जाओ पहली बार एग्जीक्यूट नहीं होंगी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जो मिस कर जाते हैं क्योंकि कभी आदत नहीं होती हमें। मोर ओवर, अभी तक आपकी प्रिपरेशन किसकी चल रही थी? प्री की चल रही थी। तो मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन इन टुडेस टाइम आर हैविंग अ पैटर्न इन विच ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आर आस्क्ड। तो आपके पास माइंड में फीड क्या है? ऑब्जेक्टिव पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, पर कन्वेंशनल पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए शुरू में क्या बोला? इन 40 डेज में गिव एम्पल नंबर ऑफ मॉक टेस्ट। जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने दो। फ्रीक्वेंसी बना लो, इन एवरी 1 वीक यू विल गिव 1 मॉक टेस्ट। एक हफ्ते में एक मॉक टेस्ट तो आप दोगे कम से कम। इससे ज्यादा दे पा रहे हो और अच्छी बात है। क्लियर है? नेक्स्ट, राइट योर आंसर इन पॉइंट्स और बुलेट्स, अवॉइड्स पैराग्राफ। तो थ्योरी क्वेश्चन में आपको पैराग्राफ नहीं लिखने, पॉइंट और बुलेट में लिखना है। ड्रॉ द डायग्राम एज रिसेंट एज पॉसिबल, प्रेजेंटेबल होना चाहिए आपका आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, डायग्राम शुड बी वेल लेबल्ड। डायग्राम में सारी चीजें लेबल करके आनी है आपको कि इस बात का मतलब क्या होता है। गेटिंग एन आंसर इज नॉट इनफ, मेक इट प्रेजेंटेबल। कहने का मतलब है जो पेपर चेक करता है वो भी इंसान ही होता है, और वो एक साथ नंबर ऑफ कॉपीज चेक कर रहा होता है। ही विल चेक एन नंबर ऑफ कॉपीज। तो ये आपको ध्यान रखना है, साइकोलॉजी है। अगर आपकी सारी बातें साफ साफ समझ में आ रही हैं, आपको मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा है। यू विल फेच मोर मार्क्स इफ योर आंसर इज प्रेजेंटेबल। तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे, बोलते हैं डाउट, सर हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है फिर क्या करें, इसमें मार्क्स कट जाएंगे क्या हमारे? अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आपके लिए तो मैंडेटरी है आपको बुलेट के फॉर्म में लिखना है, आपको पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं लिखना। यू डोंट हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। तो पैराग्राफ अवॉइड करने हैं आपको, यू हैव टू अवॉइड पैराग्राफ्स। तो थ्योरी प्रॉब्लम्स में टेक प्रॉपर केयर, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, एनालाइज व्हाट इज आस्क्ड, अवॉइड पैराग्राफ, राइट इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स, ड्रॉ द डायग्राम, कर्व, फिगर प्रॉपर्ली एंड लेबल इट। उसको प्रॉपर्ली लेबल करके आना है आपको वहां पे। नेक्स्ट, मेक अ सेपरेट लिस्ट ऑफ फॉर्मूला ऑफ ईच सब्जेक्ट। तो जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है, आप सेपरेट लिस्ट बना लो फॉर्मूलाज की, क्योंकि आपके एग्जाम में सारी काम आएंगी। एंड रिवाइज देम डेली। सो मेक, या आपके पास हैंडबुक होगी, यू विल बी हैविंग एन हैंडबुक, तो रीड दैट हैंडबुक एंड रिवाइज इट डेली। तो आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए एग्जाम में अप्लाई करने के लिए। यूज शॉर्ट एंड सिंपल ट्रिक्स फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड यूज करने के बजाय आपको छोटे तरीके यूज करने हैं सवाल सॉल्व करने के लिए। तो इनकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। यू हैव टू प्रैक्टिस दिस पॉइंट ऑल्सो। जैसे एग्जाम्पल लू मैं, इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, आज ही क्लास में डिस्कस हो रहा था ये, तो उसी से रिलेट करके मैं बता रहा हूं आपको। लेट अस सपोज वी आर फाइंडिंग द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। वी आर फाइंडिंग द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। सॉइल इज सैचुरेटेड। आपने इंस्टेंट लोड लगाया, ये लोड कौन कैरी करेगा? इफ इंस्टेंट लोड इज अप्लाइड, दिस लोड विल बी कैरिड बाय द वाटर। सो व्हाट इज द चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस? व्हाट इज द चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस? जीरो। तो डायरेक्टली आप कंसेप्चुअली आंसर बता दोगे, आपको कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है। कंसेप्चुअली यू विल मेंशन दिस पॉइंट, since the entire load will be carried by the water, pore water pressure will increase but no change in effective stress will take place. So use short and simple tricks for solving the numericals instead of traditional methods. तो traditional method adopt करने में टाइम ज्यादा लगता है, it will waste your time. तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त। नेक्स्ट पॉइंट सेज व्हाट? प्रैक्टिस राइटिंग स्किल। वही मॉक टेस्ट दो, प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट कि कितने क्वेश्चन में मुझे कितने टाइम में कितने वर्ड्स में और कितनी जगह में आंसर लिखना है। तो किस क्वेश्चन में कितने टाइम में कितने वर्ड्स में और कितनी जगह में आंसर लिखना है। रिवाइज योर सिलेबस कंप्लीटली। जितना भी अभी आप पढ़ चुके हो उसको पूरा रिवाइज करना है। तो रिवाइज वॉट एवर यू हैव लर्न अप टिल नाउ इन पास्ट 1 ईयर और 2 ईयर। पर अब और कोई नई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। यू डोंट हैव टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। नाउ जितने भी बातें मेरे को बतानी थी दैट आई हैव कंप्लीटेड। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो यू मे आस्क। हाउ टू प्रेडिक्ट द पेपर, प्लीज टेल दिस अबाउट। यू कांट प्रेडिक्ट द पेपर। प्रेडिक्ट नहीं करना है आपको पेपर, यू हैव टू डू योर प्रिपरेशन। प्रेडिक्ट करने का काम आपका थोड़ी ना है। अगर प्रेडिक्ट नहीं कर लेते फिर तो पेपर को प्रेडिक्ट कर रहे हो फिर। इफ यू वांट टू प्रेडिक्ट व्हाई यू आर प्रेडिक्टिंग द पेपर, फिर तो रिजल्ट प्रेडिक्ट करो ना सीधा। क्वेश्चन क्यों प्रेडिक्ट कर रहे हो? रिजल्ट प्रेडिक्ट करो सीधा अपना।
गेट की डिस्कशन कर दो प्लीज। गेट की डिस्कशन परसों क्लास है हमारी। डे आफ्टर टुमारो वी आर हैविंग अ क्लास फॉर प्री ऑफ ईएससी एंड गेट। तो ऑब्जेक्टिव की हमारी परसों की क्लास है, उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास डेडिकेटेड थी फॉर मेंस। टुडेस क्लास वाज डेडिकेटेड हाउ टू राइट दी मेन एग्जामिनेशन। ईएससी 2021 बोलो के लिए टिप्स। 2021 के लिए टिप्स चाहिए आपको? 2021 के लिए तैयारी करने का एप्ट टाइम आ गया है, अब तैयारी स्टार्ट कर दो 2021 के लिए। पेपर मिलते ही 1 से 5 सीधा, पेपर मिलते ही 1 से 5 सीधा अटेम्प्ट करने लगे ताकि कॉन्फिडेंस मिले। बिल्कुल सही बात है। पेपर मिलते ही 1 से 5 सीधा अटेम्प्ट नहीं करना है। सीधा अटेम्प्ट वो सवाल करना है जो आपको आता हो। अगर 1 और 5 में एक पार्ट भी ऐसा आ गया जो आपको नहीं आता है, आपका कॉन्फिडेंस नीचे आ जाएगा। हाँ, कोइंसिडेंस है कि 1 और 5 करना भी है और आपको आता भी है, तो आप सबसे पहले वही करोगे। पर हमारा बेसिक फंडा ये कहता है सबसे पहले वो सवाल करेंगे जो मुझे आता है और टाइम कम ले। हाउ टू प्लीज रिप्लाई इज दिस, हाँ दिस इज सेम फॉर एसएससी। ये सेम है एसएससी के लिए, इट इज सेम फॉर एसएससी। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू शुड फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव फॉर प्री। या व्हेन यू आर लर्निंग अ टॉपिक तब आपको कन्वेंशनल प्रॉब्लम भी करनी है, बट व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग अ प्रॉब्लम यू हैव टू प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम। So while preparing a topic, you have to attempt objective and conventional problem. But while practicing, you have to practice only objective problems. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ मेंस और कहां से क्वेश्चन मिलेंगे? और कहीं से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, कोई बुक में नहीं आते क्वेश्चन। यू हैव टू गो फॉर टेस्ट सीरीज ओनली। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा कोई किताब करने की जरूरत नहीं है। किताबों में ईएससी गेट लेवल के सवाल बहुत कम मिलेंगे। इसका सबसे अच्छा तरीका है कोई से भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज ऑफ योर चॉइस एंड गिव एज मेनी मॉक टेस्ट एज यू वांट। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। क्वेश्चन में डायग्राम है तो वापस आंसर में बनाना है। हाँ, क्वेश्चन में डायग्राम है तो वापस आंसर में बनाना है, क्योंकि डायग्राम में बहुत सारी चीजें मार्क करनी पड़ती हैं हमें। इन डायग्राम यू हैव टू मार्क सेवरल पैरामीटर्स। तो क्वेश्चन में तो आपको बेसिक डायग्राम बना के दे देगा। जैसे एग्जांपल, क्वेश्चन में तो आपको उसने सॉइल की प्रोफाइल बना के दी है। क्वेश्चन में सॉइल की प्रोफाइल बना के दी है आपको, ये फाउंडेशन है। पर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन तो आप बताओगे, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन तो हम ही बताएंगे। दूसरा, कहां पे स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हो वो आप मार्क करोगे। तो अगर क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है, आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको डायग्राम में बहुत सारी चीजें लेबल करके देनी होती है। अगर बिना लेबल के आपका काम चल रहा है सो वेल एंड फाइन, तो वो प्रॉब्लम के ऊपर भी डिपेंड कर जाएगा। मेथड सही है पर आंसर गलत आया, अभी पीछे बताया, 50% नंबर कट जाएंगे सीधा। शुरू में मैंने डिस्कस किया था इसको, आई डिस्कस दिस पॉइंट। इफ द मेथड इज करेक्ट, आंसर यू आर नॉट गेटिंग, 50% ऑफ द मार्क्स विल बी गॉन। 50% मार्क्स चले जाएंगे। इस बैच के सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा ईएससी का? इस बैच का सिलेबस खत्म हो जाएगा नवंबर तक, नवंबर और दिसंबर। सो नवंबर और दिसंबर दिस बैच विल बी फिनिश्ड। या स्टूडेंट फ्रॉम एनी ईयर कैन ज्वाइन दिस, कोई से भी ईयर के स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। आईईएस का प्रीवियस ईयर काम नहीं करेगा, वहां पे थ्योरेटिकल अप्रोच होती है। ईएस में न्यूमेरिकल अप्रोच है। तो आईएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, टाइम वेस्ट करोगे। तो उसमें सेलेक्टिव प्रॉब्लम निकालनी पड़ेगी, सेलेक्टिव प्रॉब्लम निकालने का टाइम है नहीं आपके पास। तो आईएएस में अप्रोच इज मोर थ्योरेटिकल, 60% थ्योरेटिकल, 40% न्यूमेरिकल। ईएस जस्ट अपोजिट, 70 to 80% न्यूमेरिकल, 20% थ्योरेटिकल। तो ईएससी के प्रीवियस ईयर ही करने हैं आपको, और कुछ नहीं करना। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट देने हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट ओनली। जितनी ज्यादा चीजें करोगे खुद ही कंफ्यूज होगे। तो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, खुद को ही कंफ्यूज मत करो। कन्वेंशन शुरू से किया, लिखना प्रैक्टिस स्टार्ट करें शुरू से ही। क्या बिल्कुल कन्वेंशन शुरू से प्रैक्टिस करनी है आपको, कन्वेंशन आपको शुरू से प्रैक्टिस करनी है। फोर्थ ईयर में होगा ईएससी एग्जाम, फोकस किस पे ज्यादा करें, न्यूमेरिकल या थ्योरी पे? जब आप टॉपिक को पढ़ रहे हो दोनों चीजें सेम है। न्यूमेरिकल थ्योरी में कोई प्रेफरेंस नहीं है, ये सवाल करने के टाइम की प्रेफरेंस थी। और जब आप कोई टॉपिक पढ़ोगे तब आप पूरी चीज कंसेप्चुअली पढ़ोगे, तब ये नहीं देखोगे न्यूमेरिकल देखना है या थ्योरी देखनी है इसकी।
क्लियर है? कैलकुलेटर, ऑल द नॉर्मल कैलकुलेटर्स आर अलाउड, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इसके अलावा बाकी सारे कैलकुलेटर अलाउड है. योर कैलकुलेटर शुड नॉट बी अलाउड एट 991 ईयर्स, इट शुड बी नॉन प्रोग्रामेबल. तो आपका जो कैलकुलेटर है नॉन प्रोग्रामेबल होना चाहिए. मोर ओवर, ये बेसिक जानकारी है. प्रैक्टिकल में बताऊं आपको, प्रैक्टिकल स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं. क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? उनका जो सेंटर आता है मोस्टली रिमोट एरियाज में भी आता है. इन मोस्ट ऑफ द केसेस सेंटर इज इन रिमोट एरिया, और वहां पर जो एग्जामिनर होता है उसको इसके बारे में जानकारी नहीं होती. इवन इफ द कैलकुलेटर अलाउड, अगर आपका कैलकुलेटर दिखने में फैंसी है, प्रोग्रामेबल नहीं है, फैंसी है, एग्जामिनर कैलकुलेटर लेके रख लेगा. फिर आपको उससे डिस्कशन करनी पड़ेगी, नहीं है कैलकुलेटर प्रोग्रामेबल नहीं है, इसमें आपका टाइम ही वेस्ट होगा. तो कैलकुलेटर ऐसे लेके जाओ जो फैंसी नहीं हो दिखने में. तो भले ही अलाउड होगा, इट शुड नॉट बी फैंसी. आईएएस और ईएससी अलग है? नहीं, उसी का दूसरा नाम है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज. हम बोल देते हैं, कॉमन नाम है. यूपीएससी उसे ईएससी बोलता है. इट इज इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन. So I have covered most of the points to be taken proper care while writing your examination. It is more than enough time. 2021 के लिए बहुत टाइम है आपके पास, आराम से स्टार्ट कर सकते हो आप. चलिए, so we are done with today's class. For objective, that is ESC pre, and for gate we'll be having the class on 9th. तो 9th को क्लास है at 3:30 PM. So in that class we'll be talking about objectives. वहां पे हम बात करेंगे objectives की. Thank you everyone.